Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine and will be good, staying safe at home. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class of Social Studies for Class 5. I am your Social Studies teacher and this is our second video lecture. In the previous video lecture, we have discussed some of the landforms, which includes mountains, hills, valleys, deserts, plains and plateaus. We have discussed these in detail. We started our chapter Physical Regions of Pakistan. The physical regions of Pakistan include mountains, plateaus. These two physical regions of Pakistan are discussed in the previous video lecture, and today we will discuss the plains, the deserts and the coastal areas. The mountains of Pakistan. What are mountains? We have discussed it, and Pakistan, in the north of Pakistan, there are mountains which are further divided into the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush, and in the western side there is also a series of mountains which include Safed Ko, Waziristan Hills, Suleiman Mountains and Kirthar Mountains. Then we discussed the northern mountains, the Himalayas, which is further divided into three branches: the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas and the Shivalik Hills. Then we discussed Karakoram Range, and Karakoram Range also has world's second highest peak and Pakistan's first highest peak, which is also known as Mount Godwin Austen. I am talking about the K2, which is 8,611 meters high. Then the third one was Hindu Kush mountain range, which is situated in the northwest of Pakistan along the border of Afghanistan, and it stretches from Chitral, Swat and Malakand up to river Kabul in south. The highest peak की हमने बात की, highest peak of Hindu Kush is Tirshmir, which is 7,690 meters high. Now in this video lecture we will discuss the western mountains of Pakistan. The western mountains are low mountains, and these include Safed Ko, Waziristan Hills, Suleiman Mountains and Kirthar Mountains. Now Safed Ko, which is also called Spinghar locally. Safed Ko means the white mountain. It is a mountain range in the eastern Afghanistan which expands into KPK. इसको स्पिनगर भी कहते हैं, जिसका मतलब है वाइट माउंटेन, और ये ईस्टर्न पाकिस्तान से शुरू होकर KPK तक, पाकिस्तान का जो KPK प्रोविंस है, हमारा जो KPK प्रोविंस है, यहाँ तक ये सिलसिला फैला हुआ है। अब ये कहाँ वाक़या है, अब इसको आप गौर से सुनिएगा। इट लाइज़ इन द साउथ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, और ये हिंदू कुश के साउथ में वाक़या है, फ्रॉम रिवर काबुल टू रिवर कोरम, अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये वाक़या है। और किस रिवर पे वाक़या है? रिवर काबुल से रिवर कुरम तक ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये वाक़या है। कहाँ से शुरू होता है? ईस्टर्न अफ़गानिस्तान से शुरू होकर KPK तक ये सिलसिला फैला हुआ है। ठीक, now this is the picture of
सफ़ेद को माउंटेन। If we talk about the highest peak of Safedko, so the highest peak of Safedko is Sikaram, which is 4,712 meters high. सफ़ेदको की हाईएस्ट पीक जो है वो है सिकाराम और ये तकरीबन 4,712 मीटर्स ऊंची है ये चोटी। Now let me show you the picture of Sikaram. This is Mount Sikaram, which is the highest peak of which mountain range? Yes, Safedko mountain range. Where does it lie? It lies from river Kabul to river Kurram. river Kabul से river Kurram तक ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या है। And its highest peak is Mount Sikaram. Now वज़ीरिस्तान हिल्स। अब देखें सफ़ेद को हमने डिस्कस किया, सफ़ेद को हिंदू कश के साउथ में वाक़या है, ठीक। अब वज़ीरिस्तान हिल्स जो है ये सफ़ेद को के साउथ में वाक़या है। सुने, इन द साउथ ऑफ सफ़ेद को लाइज द वज़ीरिस्तान हिल्स। सफ़ेद को के साउथ में वज़ीरिस्तान हिल्स वाक़या है और इसकी हाइट जो है वो 3,513 मीटर्स तक है, बिटवीन रिवर कुरम टू रिवर गोमाल। अब ये रिवर कुरम और रिवर गोमाल के दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला सफ़ेद को के साउथ में वाक़या है और इसकी हाइट भी आप देख लें 3,513 यानी 3,513 मीटर्स। Now Suleiman Mountains. Suleiman Mountains lies in the south of river Gomal up to river Bolan. अब देखें रिवर जो सुलेमान माउंटेंस हैं ये कहाँ पे वाक़या है? ये रिवर गोमाल के साउथ में से शुरू होकर रिवर बोलान तक ये पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। These mountains are situated along the river Indus. ये रिवर इंडस पे वाक़या ये पहाड़ी सिलसिला सेपरेटिंग खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब फ्रॉम बलूचिस्तान। अब ये पहाड़ी सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बलूचिस्तान प्रोविंस से अलग करता है, जुदा करता है। These mountains are found in the south of गोमाल रिवर। कहाँ पे वाक़या है? गोमाल रिवर के साउथ में वाक़या है। एंड दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन सम रीजन्स ऑफ अफ़गानिस्तान एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये अफ़गानिस्तान के कुछ इलाक़ों में भी ये पहाड़ी सिलसिला वाक़या है और हमारे पाकिस्तान का हमारा जो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, यहाँ भी ये पहाड़ी सिलसिला वाक़या है और ये दो सूबों को जो है बलूचिस्तान से अलग करता है। वो कौन से दो प्रोविंसेस हैं? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बलूचिस्तान से सेपरेट करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट the highest peak of Suleiman mountain range, so the highest peak of Suleiman mountain is Takht Suleiman and its height is, what is its height? 3,383 meters. Now the last one is Kirthar mountains. कीरथर माउंटेंस और इसकी हाइट आप देख लें 2,174 मीटर्स। और कोस्टल माउंटेंस हैं विच लाई इन द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। और ये कहाँ पे वाक़या है? ये रिवर इंडस के वेस्ट में वाक़या है ये पहाड़ी सिलसिला। एंड इट इज़ अ माउंटेन रेंज दैट मार्क द बाउंड्री बिटवीन बलूचिस्तान प्रोविंस एंड सिंध प्रोविंस। लेट मी शो यू कीरथर माउंटेंस ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान. Now here you can see here this is the boundary of Sindh and Balochistan na. So the Kirthar mountain range lies here, so it also marks the boundary between Sindh and Balochistan and it is situated in the west of river Indus. ठीक, Kirthar mountain is clear. Now we will proceed towards the plateaus. What is a plateau? Plateau is a high flat land above sea level. Plateaus जिसको उर्दू में सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। अब ये है क्या? ये एक मैदानी इलाका है, हमवार इलाका होता है, लेकिन ये सतह समंदर से हाइट पे होता है, सतह समंदर से ऊंचाई पे होता है ये इलाका। ठीक,
फ्लैट लैंड है, हमवार इलाका है, लेकिन ये सतह समंदर से ऊंचाई पे होता है, हाइट पे होता है। देयर आर 2 प्लेटूज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 प्लेटूज़ हैं, पोटोहार प्लेटो एंड बलोचिस्तान प्लेटो। हेयर ऑल्सो अ फ्लो शीट इज़ मेड हेयर। Plateaus. How many plateaus are there in Pakistan? There are 2 plateaus. Yes, Potohar Plateau and Balochistan Plateau. Now first we will discuss Potohar Plateau. This is a picture of a plateau. This is picture of a plateau. और मैप ऑफ पाकिस्तान में भी I am going to show you plateaus of Pakistan. Here lies the Potohar Plateau and there is the Balochistan Plateau. अच्छा, यहाँ पे आप लोग वो भी देख सकते हैं। पहले भी मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको माउंटेन रेंजेस बता चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस, हिंदू कुश, काराकोरम एंड हिमालयाज़। यहाँ पे ये सुलेमान रेंज है, यहाँ पे ये देखें खीरथर रेंज। क्लियर नाउ? ओके। Now Potohar Plateau. First we are going to discuss the Potohar Plateau, where it is situated and what is its height. Potohar Plateau, इसकी हाइट आप देख लें कि ये सतह समंदर से 300 से लेकर 600 मीटर्स तक ऊंचाई पे ये वाक़या है। ये सतह मुर्तफ़ा पोटोहार कहाँ पे वाक़? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर जहलम एंड रिवर इंडस। ये 2 रिवर्स यानी रिवर जहलम और रिवर इंडस के दरमियान वाक़ है। एंड देयर इज़ अ सॉल्ट रेंज टू द साउथ ऑफ पोटोहार प्लेट्यू। और पोटोहार प्लेट्यू के साउथ में क्या है? सॉल्ट रेंज भी है। इट इज़ लोकेटेड वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर जहलम एंड रिवर इंडस। ये 2 रिवर्स आपने माइंड में रखने हैं, रिवर जहलम और रिवर इंडस के दरमियान ये प्लेटो वाक़या है। एंड दिस प्लेटो इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जहलम, चकवाल एंड रावलपिंडी एट्सेट्रा। एंड इसके साउथ में क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के इन द साउथ ऑफ पोटोहार प्लेटो देयर इज़ अ सॉल्ट रेंज, हिल सिस्टम विच हैज़ अबंडेंट ऑफ सॉल्ट। यानी इसके साउथ में क्या है? सॉल्ट रेंज भी है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट रेंज, खेवड़ा। Here you can see on the map of Pakistan that where is Potohar Plateau. Now in the info box what information is given? The world's second biggest salt mine, यानी नमक की जो सबसे बड़ी कान है, सेकंड बड़ी कान है खेवड़ा, वो इसी सॉल्ट रेंज में वाक़या है। यानी पोटोहार प्लेटो के साउथ में जो सॉल्ट रेंज है, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट सॉल्ट माइन। नाउ लेट्स डिस्कस बलूचिस्तान प्लेटू। बलूचिस्तान प्लेटू की हाइट आप देख लें, इट्स हाइट इज़ 600 to 3010 मीटर्स। सतह समंदर से 600 से लेकर 3000 मीटर्स तक वाक़या है बलूचिस्तान, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। एंड ये कहाँ पे वाक़या है? इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ सुलेमान एंड कीरथर माउंटेंस। और ये सुलेमान रेंज जो अभी मैंने आपको मैप में बताया और कीरथर माउंटेंस का मैंने आपको बताया कि इसके वेस्ट में जो है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान वाक़या है। इट रीचेज़ ईरान इन द वेस्ट एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ। ये आगे फर्दर जो पाकिस्तान की 2 नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान और अफगानिस्तान, वहाँ तक ये सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान जो है ये फैला हुआ है। एंड इट इज़ वेरी रफ एंड ड्राई एंड द लोकल पीपल व्हाट डू दे डू फॉर एग्रीकल्चर? के दे डू अंडरग्राउंड कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट or have been built like carets for agriculture because this area is very much dry and rocky. Now here on this map Balochistan plateau is shown here. ये देखें सुलेमान रेंज, यहाँ पे कीरथर रेंज है। सो इसके वेस्ट में कौन सा प्लेटू है? बलूचिस्तान प्लेटू है। ठीक है, ओके जी।
Now plains, what are plains? Plains is a flat area on the surface of the earth. प्लेन एरियाज़ जिसको उर्दू में मैदानी इलाके भी कहते हैं, ये भी हमवार ज़मीन होती है। एंड इन पाकिस्तान, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो दीज आर द मोस्ट फर्टाइल एरियाज़ ऑफ Pakistan where most of the agriculture take place. So if we talk about Pakistan, the plain areas of Pakistan is divided into two parts, upper Indus plains and lower Indus plains. Now let us discuss the upper Indus plains. The upper Indus plain starts from foothills of Himalayas and Pothohar Plateau and ends near Mithankot, and it is very fertile and good for cultivation. अब देखें, हिमालयाज़ और पोटोहार प्लेटो के फुट हिल से स्टार्ट होकर ये मिटनकोट में ये एरिया जो है, जो अपर इंडस प्लेन का एरिया है, ये ख़त्म होता है। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन, और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए ये इलाका बेस्ट है, जहाँ पे वीट, राइस, कॉटन और शुगर कैन वगैरह की ये क्रॉप जो है ये ग्रो होते हैं। ठीक है। Now lower Indus plains. The lower Indus plains stretches from Mithankot to the deltaic area near Thatta where the river Indus flows. अब ये lower Indus plains मैं आपको मैप में ही बताती हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। And it is also very fertile and produces good crops। और ये भी जो है, इसकी ज़मीन भी जो है, ये आप कह लेंगे ये भी एक ज़रख़ेज़ इलाका है और गुड क्रॉप जो है ये भी प्रोड्यूस करता है। अब देखें, ये एरिया हमारे पास देखें, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे आप देखें रिवर इंडस फ्लो हो रहा है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आप देख लें, झेलम, चनाब, रावी और सतलज। So there is abundant of water, and you can see that this is because of the availability of water, this area is the most fertile area of Pakistan. Now this is the lower Indus plains. मिठनकोट से स्टार्ट होकर ये ठट्ठा तक, जहाँ पे रिवर इंडस जो है ये डेल्टा बनाता हुआ रिवर अरेबियन सी में जाता है। सो यहाँ तक ये लोअर इंडस प्लेन का जो एरिया है ये वाक़या है। ठीक है। अच्छा जी, अब डेजर्ट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? सहरा। ये एक हॉट ड्राई प्लेस, इट इज़ अ हॉट ड्राई प्लेस विद लिटिल और नॉट रेनफॉल। एक ऐसा इलाका जहाँ पे कई सालों तक बारिश ना हो, जहाँ की ज़मीन जो है अनप्रोडक्टिव हो, फर्टाइल ना हो, बैरन हो, और वहाँ पे जो है वो बारिश कई सालों तक ना होती हो। सो वो इलाका क्या हो जाता है, वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सहरा बन जाता है। कुछ डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं, कुछ वार्म भी होते हैं, कुछ रॉकी होते हैं, कुछ सैंडी होते हैं। So if you talk about Pakistan, so the deserts of Pakistan are Thal, Thar and Kharan desert. देखें आप इस फ्लो शीट में देख लें, Thal, Thar and Kharan desert, and the further two other parts of Thar deserts are Cholistan and Nara desert. Now let us discuss it one by one. Thal desert, the desert situated in the North Punjab is called Thal desert. आप इस मैप में देख लें कि पंजाब के नॉर्थ में वाक़या ये एरिया जिसको ऑरेंज कलर से शो किया गया है, दिस इज़ थल डेजर्ट। एंड वेयर डज इट लाई? इट लाइज बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम, और ये रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान ये वाक़या है। इट स्प्रेड्स ओवर द एरिया ऑफ मियावाली। अब ये किन इलाकों में फैला हुआ है? इट स्प्रेड्स ओवर द एरियाज़ ऑफ मियावाली, खुशाब, भक्खड़, लिया एंड मुजफ्फरगढ़। इन एरियाज़ तक, यानी मियावाली तक, खुशाब, भक्खड़, लिया और मुजफ्फरगढ़ तक ये जो है डेजर्ट फैला हुआ है। नाउ थर्ड डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो पाकिस्तान्स लार्जेस्ट डेजर्ट। द डेजर्ट सिचुएटेड इन ईस्टर्न सिंध। यहाँ पे ये देखें, दिस इज़ सिंध, you can see Sindh over here. So the ये मस्टर्ड कलर से जो आपको नज़र आया नंबर 1, ये थर्ड डेजर्ट को शो कर रहा है। एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये ईस्टर्न सिंध में वाक़ है, एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन एरियाज़। और इसके मेन एरियाज़ बाकी जो दो हैं वो कौन से हैं? चोलिस्तान डेजर्ट एंड नाड़ा डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट पाकिस्तान पंजाब में, और नाड़ा डेजर्ट सिंध में है। और थर्ड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ Kharan desert, and it is situated in Balochistan province, and it covers an area of more than 20,000 square kilometer. अब यहाँ पे आप देख लें
ये खारान डेज़र्ट जो है ये पाकिस्तान में शुरू होता है, ब्राउन कलर से जो आपको नज़र आ रहा है, ये आगे ईरान तक ये सहरा जो है ये फैला हुआ है। सो दिस वर अबाउट the deserts of Pakistan, and the last region of Pakistan is the coastal areas, पाकिस्तान के साहिली इलाके, which is also very important for the in the point of view that we can say that it connects Pakistan to the other countries. The coastal areas on the shore of Arabian Sea connect Pakistan with the other countries of the world through the sea route. Coastal areas, these are the coastal areas of Pakistan. ये पाकिस्तान का साहली इलाका है और इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आप देख लें, गवादर है, पसनी है, ये देखें अरमारा है, और ये कराची है। ये अरेबियन सी के साहिल पे वाक़ पाकिस्तान के साहली इलाके ये पाकिस्तान को दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें कराची पोर्ट है, देखें आप इधर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंध कोस्ट, यानी सिंध की तरफ जो साहिली इलाका है वहाँ पे हमारे पास पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट है। और यहाँ पे आप देख ले गवादर है, ये which is very important and prominent seaports of Pakistan. Okay, this was about our first chapter. Inshallah, see you soon. Till then, take care. Allah Hafiz.